हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए करंट ऑफ 10 नैनो एम्पियर इज एस्टेब्लिश्ड इन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ current loop is 7.85 into 10 to the power minus 10 ampere meter square, 5 into 10 to the power minus 8 ampere meter square, 7.85 into 10 to the power minus 11 ampere meter square, 0 ampere meter square. Question number 2, a charge of 2 microcoulomb moves with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second along the positive x-axis. A magnetic field of strength 0.2 j cap plus 0.40 k cap Tesla. The magnetic force acting on the charge is 0.8 k cap plus 1.6 j cap Newton, 0.8 k cap minus 1.6 j cap Newton, 0.8 j cap plus 1.6 k cap Newton, 1.6 k cap minus 0.8 j cap Newton. Question number 3, a wire is bent in form of a equilateral triangle of side 10 cm and carries a current 5 ampere. It is placed in a magnetic field of magnitude 20 Tesla directed perpendicular to the plane of the loop. The net force acting on triangle will be 1 Newton, 3.0 Newton, 0 Newton and 2 Newton. Question number 4, a proton and an alpha particle moving with equal kinetic energy enter perpendicularly into a magnetic field. If Rp and R alpha are the respective radii of the circular path, the ratio Rp by R alpha is under root 2 1 1 upon root 2 1 by 2. अब इनके solution. Question number 1, a current of I 10 into 10.0 nano ampere is established in a circular loop of radius 5 centimeter. The magnetic dipole moment of the current loop is 7.85 into 10 to the power minus 10 ampere meter square, 5 into 10 to the power minus 8 ampere meter square, 7.85 into 10 to the power minus 11 ampere meter square, 0 ampere meter square. Current है, current is 10 nano ampere और 10 into 10 to the power minus 9 ampere और 1 into 10 to the power minus 8 ampere. Radius 5 centimeter और 5 into 10 to the power minus 2 meter. एक सर्कुलर लूप, अगर इसमें करंट आई है, दिस इज आर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है और टर्न्स नंबर ऑफ टर्न एन है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एन आई ए। तो m की वैल्यू, n है नंबर ऑफ टर्न 1, करंट है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एम्पियर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पाई आर स्क्वायर। m is equal to 1 into 10 to the power minus 8, 3.14 into r square, r is 5 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर।
3.14 into 10 to the power minus 8 into 25 10 to the power minus 4 और 78.50 into 10 to the power minus 12 एम्पियर मीटर स्क्वायर और 7.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम की वैल्यू है वो 7.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए चार्ज 2 microcoulomb moves with the speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second along the positive x-axis. A magnetic field B of strength 0.2 J cap plus 0.4 K cap Tesla. The magnetic force acting on the charge is 0.8 K cap plus 1.6 J cap, 0.8 K cap minus 1.6 J cap, 0.8 J cap plus 1.6 K cap, 1.6 K cap minus 0.8 J cap न्यूटन। जो चार्ज है Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम और 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलाम। V वेक्टर V मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड और इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप। यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की तरफ वो आई कैप और बी वेक्टर दिया है 0.20 जे कैप प्लस 0.40 के कैप। फोर्स एफ क्यू वी क्रॉस मल्टीप्लाई बी। Q is 2 into 10 to the power minus 6 into V 10 to the power 6 I cap cross 0.20 J cap plus 0.40 K cap। 4 I cap cross multiply 0.20 J cap plus 0.40 K cap। 4 0.20 I cap cross J cap plus 0.40 I cap cross K cap। एफ की वैल्यू तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप और के कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। एफ की वैल्यू आ जाती है 0.20 आई कैप इंटू जे कैप इज के कैप और के कैप आई कैप जे कैप लेकिन यहाँ पर है आई कैप इंटू के कैप तो माइनस का हो जाएगा 0.40 जे कैप और 0.80 के कैप माइनस 1.60 जे कैप। तो फोर्स हो जाएगा 0.8 के कैप माइनस 1.6 जे कैप। बी इज करेक्ट ऑप्शन।
Question number 3. A wire is bent in the form of equilateral triangle of side 10 cm and carries a current of 5 cm. It is placed in a magnetic field B of 2 Tesla directed perpendicular to the plane of loop. The net force acting on the triangle will be 1.0, 30, 0 and 20. अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई भी लूप रखी होगी किसी भी शेप की, उस पर नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स विल बी 0. अगर ये किसी और शेप की भी होती, सपोज इस तरह की होती, तब भी इस पर नेट फोर्स 0 होता. किसी भी शेप की सर्कुलर होती तब भी नेट फोर्स 0 होता. तो किसी भी जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें कोई भी लूप अगर रखा है तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा. यहाँ पर हम इसको चेक भी कर सकते हैं. सपोज ये इक्विलेटरल लूप पी क्यू आर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई करंट फ्लो कर रहे हैं. और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये माइनस के डायरेक्शन में. एक साइड, हर साइड इक्वल है और एल एल लेंथ है इनकी. अगर ये तो क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एफ क्यू आर होगा आई बी एल और आई बी एल की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में. इसके सेंटर पर अगर हम एवरेज मान लें, मतलब उसका एक्टिंग एट सेंटर एफ. अगर ये सपोज एक्स एक्सिस है तो करंट की डायरेक्शन है आई कैप एल इंटू आई कैप इंटू माइनस बी के कैप और एल आई बी माइनस आई कैप इंटू के कैप, तो ये आ जाता है आई एल बी जे. सिमिलरली जो फोर्सेस एक्ट करेंगी वो आर पी पर इसके सेंटर से, उसकी वैल्यू भी क्योंकि एल सेम है एफ होगी, और यहाँ से भी इसके भी सेंटर से जाएगी और ये जो नेट फोर्स है एफ होगी. ये तीनों फोर्सेस जो मीडियन को मिलाने वाला जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड पे मिलेंगी और सेंट्रोइड पर इनकी पोजीशन अगर हम देखें अगर ये सेंट्रोइड है तो
इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा एफ क्यू आर, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा एफ पी आर, और इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा एफ पी के। दिस इज एफ क्यू आर, एफ क्यू पी और एफ पी आर। सभी फोर्सेस इक्वल हैं और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो इस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी ज़ीरो। अगर तीन फोर्सेस इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री एंगल पर एक्ट कर रही हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो इस तरह से इस पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी ज़ीरो। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रोटॉन and an alpha particle moving with equal kinetic energies enter perpendicularly into a magnetic field. If Rp and R alpha are the respective radii of circular path, the ratio Rp upon R alpha is. So kinetic energy is equal. Centripetal force mv square r is equal to qvb। v से v क्रॉस हो गया तो r इज mv बाई qb। mv इज लीनियर मोमेंटम p अपॉन qb और p की वैल्यू होती है 2m k। अगर k काइनेटिक एनर्जी है, m मास है, अंडर रूट अपॉन qb। अब प्रोटॉन के केस में प्रोटॉन Rp इज इक्वल टू 2mp इंटू k अंडर रूट डिवाइड बाई Q की वैल्यू होती है E के इक्वल, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इंटू B। फोर अल्फा पार्टिकल R alpha is equal to 2 mass of alpha particle is equal to 4 proton, 4 mass of 4 protons, 4 mp इंटू k। और चार्ज होता है Q की वैल्यू होती है 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 2e इंटू b। दिस इज अंडर रूट। ऊपर से हमने इसका 4 का अंडर रूट बाहर ले लिया, 2 अंडर रूट 2mp k और 2eb, 2 से 2 क्रॉस हो गया तो 2mp k अंडर रूट डिवाइड बाय eb। और R अल्फा RP इज सेम, दिस इज इक्वल टू R। तो Rp अपॉन R अल्फा इज इक्वल टू 1। दोनों की रेडियस सेम होंगी। B इज करेक्ट ऑप्शन।